Hello and welcome, dear students, to the Notebook Plus. Consumer surplus we have discussed. In this lecture, we will try to understand, dear friends, the limitations of consumer surplus, importance of consumer surplus, and more importantly, measurement of consumer surplus using indifference curve. These are the three important topics which we will be covering in this session. सो कंज्यूमर सरप्लस को थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं. वी हैव अंडरस्टूड द कंसेप्ट ऑफ कंज्यूमर सरप्लस जो मार्शल साहब ने दिया है. वो कहते हैं कंज्यूमर सरप्लस इज व्हाट अ कंज्यूमर इज रेडी टू पे एंड व्हाट ही एक्चुअली पेज. द डिफरेंस बिटवीन दैट इज द सरप्लस विच इज द कंज्यूमर सरप्लस. राइट. जो कंज्यूमर सरप्लस है, इट इज derived from the large diminishing marginal utility, which means the more of a commodity which we have, it is utility to get that the marginal utility is diminishes. For example, commodity का एक यूनिट हमने कंज्यूम कर लिया है, उससे मिलने वाली marginal utility अगर 10 है, if we consume additional unit of x, which means second unit or 2 units, its utility will decrease. This is the law of marginal utility and consumer surplus यहीं से derive किया गया है. जब हम अंडरस्टैंड करते कंज्यूमर सरप्लस को, वी गेट एन आइडिया कि इट हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम लार्ज डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. सो आपका कंज्यूमर सरप्लस जो है, इट इज़ द अमाउंट ऑफ मनी अ कंज्यूमर इज विलिंग टू पे अबव द एब्सोल्यूट लोवेस्ट रीजनेबल प्राइस टू बाई फॉर एग्जाम्पल अ गुड, नेमली कार. हियर दिस इज द graphical representation of which we have already discussed of consumer surplus. The total consumer surplus is consumer surplus of the consumer surplus which are this is OP. Let me explain it again to you. OP is the market price, OQ is the quantity which a consumer buys, right? For that, OY a consumer is willing to pay, but actually he pays OP, which is a market price. The surplus is PYR, right? PYR, this is the total quantity, total surplus which consumer gets. The shaded area जिसमें ODR this ODRQ here, dear friends, ODRQ is the area under the demand curve which shows total surplus, dear friends. Total utility is the area under the demand curve, total utility, which is OD, this point, R and Q. And if we deduct the expenditure which consumer made, expenditure is OPRQ from the total expenditure, from the total utility. If we deduct the total expenditure consumer made, what we get? We get the consumer surplus, which is this portion. So this we have discussed the table, how the consumer surplus is measured, how we measure consumer surplus using table. This we have discussed. So let's quickly run through what is the importance of consumer surplus. It is used in public finance in the areas such as taxation. It is used by businessmen and the monopolist to fix the price to get profit, right? Consumer surplus is help us in comparing advantages of the different places and in assessing welfare related with it. Consumer surplus is used to distinguish between the goods which have use value and the goods which have exchange value. Consumer surplus is also used to measure the benefits from the international trade, which is also important. So this is the important topic, and this is how the consumer surplus is used in the various fields. So the limitations of the consumer surplus given by the Alfred Marshall is consumer surplus cannot be measured precisely. We cannot measure it precisely. In case of necessities, consumer surplus is always infinite. Necessities means the necessary goods. Consumer surplus derived from a commodity is affected by its substitute goods, right? Substitute goods we have discussed. And for deriving utility, there is no simple rule for deriving utility of articles which are used for prestige value. For example, market value or price is equal to the utility which we get. The money which we spend is equal to the utility which we get according to the Alfred Marshall. In case of, for example, let's take the case of diamond. For diamond, we paid a lot of money, which means we get a lot of utility. There is no simple rule for the commodities which we pay extremely high prices. How much consumer surplus we get from those goods? If there is exactly, there is not in case of the prestige, those goods who have prestige value, who are luxurious goods.
there is no such valuation method how we measure consumer surplus in case of those commodities. Consumer surplus cannot be measured in terms of money because marginal utility of money changes, right? According to Alfred Marshall, this is the whole funda here. According to Alfred Marshall, marginal utility of money is constant, which means when there is increase in price or decrease in price, the utility to get money does not change. According to Marshall, this is constant. But what actually happens when there is decrease in price, purchasing power of commodity increases, which means अगर पैसा प्राइस किसी चीज़ का कम हो जाता है, सस्ती हो जाती है, हम 10 रुपये में एक कोई गुड खरीद पा रहे थे, अब उसी 10 रुपये में हम 2 खरीद सकते हैं, विच मीन्स कंज्यूमर का परचेजिंग पावर बढ़ जाएगा, उसकी मार्जिन यूनिट ऑफ मनी कम हो सकती है. अगर प्राइस इंक्रीज हो जाता है, 10 रुपये की चीज़ 20 में बिकती है, तो टू हैव मोर मनी, उसके लिए यूटिलिटी हमारी बढ़ जाएगी. ठीक है, हमारी पैसे होने की यूटिलिटी जो है बढ़ जाएगी जब प्राइस इंक्रीज हो जाएगा. जो हमारे मार्शल साहब हैं वो मार्जिन यूटिलिटी ऑफ मनी को कांस्टेंट ले लेते हैं. दैट्स व्हाई ही इज़ एबल टू मेजर द यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ money spent on the goods and services, which is unrealistic, and this is how consumer surplus cannot be measured in terms of money, right? Accordingly, the concept cannot be accepted only. The concept of consumer surplus can be accepted only if it is assumed that the utility can be measured in terms of money again or otherwise. It was the modern economists, those believe that this cannot be done, which means the constancy of money cannot be done. We cannot assume that marginal utility of money is constant, because that is not constant. The money which we have, for example, if the price increases, goods becomes expensive for us. अगर हम 10 रुपये की चीज़ 20 रुपये में बिकने लगी तो महंगी चीज़ें हो गई हमारे लिए, पैसा ज़्यादा से ज़्यादा हमारा कम चीज़ों में खर्च होगा. तो हैव मोर मनी, उसके लिए यूटिलिटी जो हमारी है बढ़ जाएगी. ठीक है. So this assumption, this is neglected by the Alfred Marshall, and the same assumption is used to explain the consumer surplus. So these are the limitations of consumer surplus. The important जो है consumer, how the consumer surplus, this was the Alfred Marshall's concept, and this was the importance, and these are the limitations. So the next important जो topic है इसी में cover करने वाले हैं हम, है कि how this consumer surplus can be measured. हमने आपका consumer surplus जो है, consumer surplus last lecture में discuss किया है. And what is this consumer surplus? How Alfred Marshall has given the concept to measure the consumer surplus, this we have discussed in the earlier lecture. अगर आपने वो नहीं देखा है तो प्लीज़ डू विजिट प्लेलिस्ट, उसमें आप जाके देख लें, वहाँ वो पढ़ाया हुआ है. आज हम देखने वाले हैं इस सेशन में, अर्लियर लेक्चर में, व्हाट वर द लिमिटेशंस ऑफ द कंज्यूमर सरप्लस एंड द मेजरमेंट ऑफ कंज्यूमर सरप्लस गिवन बाय अल्फ्रेड मार्शल सर. वी हैव डिस्कस्ड दैट, एंड व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर सरप्लस आल्सो वी हैव टच्ड दैट. इन दिस सेशन वी विल डिस्कस how the consumer surplus is measured by using indifference curve technique. जो हमारे जे.आर. हिक्स सर हैं या आर.जे.डी. एलन सर हैं, जिन्होंने इंडिफरेंस टेक्निक को दिया है टू मेजर द यूटिलिटी विच अ कंज्यूमर डिराइव्स बाय कंज्यूमिंग डिफरेंट कमोडिटीज. कंज्यूमर को कितनी यूटिलिटी या सेटिस्फैक्शन मिलती है तो आफ्टर बाय कंज्यूमिंग एनी कमोडिटी और नंबर ऑफ कमोडिटीज, उसको मेजर करने की टेक्निक जो उन्होंने दी है, बताई है कैसे कंज्यूमर रैंक कर सकता है, कैसे रैंक कर सकता है द यूटिलिटी विच डिराइव्स बाय कंज्यूमिंग डिफरेंट गुड्स. ये कॉन्सेप्ट जो है जे.आर. हिक्स, आर.जे.डी. एलन सर ने दी है, राइट. सो अब आर.जे.डी. एलन सर जो हैं एंड जे.आर. हिक्स सर, दे हैव क्रिटिसाइज्ड द मार्शल्स कॉन्सेप्ट ऑफ कंज्यूमर सरप्लस, एंड दे हैव गिवन देयर कॉन्सेप्ट हाउ दे हैव गिवन दिस कॉन्सेप्ट. उन्होंने दिया है कि हम इंडिफरेंस कर्व को कैसे इस्तेमाल करके कंज्यूमर सरप्लस जो है मेजर कर सकते हैं. एंड दिस कंज्यूमर सरप्लस वी नो, हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया है, दिस इज व्हाट अ कंज्यूमर इज विलिंग टू पे टू परचेज a good, right? How much a consumer is willing to pay to purchase or consume a good, and what he actually pays. What he actually pays, what is the actual market valuation? Actual market price का एक गुड का क्या होता है? For example, गुड X, उसके लिए कंज्यूमर देना कितना चाहता है? For example, 20 रुपीज़ in terms of rupees, ठीक है? What he actually pays in the market, say for example 15 रुपीज़. In terms of this price, उसका सेव कितना हो जाता है? 5 रुपीज़, because the consumer was willing to pay 20 रुपीज़, which means उसकी जो यूटिलिटी मिलने वाली है वो 20 रुपीज़ है, राइट. एक्चुअली से मार्केट में कितना देना पड़ता है इस गुड एक्स की का मार्केट वैल्यू क्या है, विच मीन्स प्राइस क्या है इसका, 15 रुपीज़ है, तो 15 रुपीज़ में ही ये गुड परचेज कर लेता है. द अमाउंट विच ही saves here, the extra benefit which he gets is the 5, which means जो ये 5 है ये consumer surplus है. This we have understood. यहाँ this was important here to recap a bit to understand how consumer surplus can be measured by using indifference curve technique. Dear friends, this is the simplest way to understand the consumer surplus and its measurement by understanding it using a graph which is here given. आप यहाँ से देख लें, हम नीचे से जो हमारी हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस है यहाँ से हम मेजर करते हैं कि हमारा कंज्यूमर कितनी क्वांटिटी ऑफ अ गुड कंज्यूम कर लेगा. हियर ऑन दी जो हमारी वर्टिकल एक्सिस है या वाई एक्सिस, यहाँ से हम दिखाते हैं कि कितना वो मनी स्पेंड करेगा, ठीक है, तो कंज्यूम द क्वांटिटी, पर्टिकुलर क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी.
नाउ देयर आर टू इंपॉर्टेंट सिचुएशन जो आपने समझनी है टू अंडरस्टैंड कि कंज्यूमर सरप्लस किस तरह से मेजर किया जाता है बाय यूजिंग इंडिफरेंस कर्व। पहली पोजीशन है हमारी जहां हमारा कंज्यूमर पॉइंट एस पे होता है विच इज गिवन, ठीक है। यहाँ पे कंज्यूमर हैज नो आइडिया, दिस इज द फर्स्ट एग्जम्पशन एंड फर्स्ट कंडीशन। द पॉइंट एट द पॉइंट एस कंज्यूमर हैज नो आइडिया कि जो कमोडिटी या कम्बिनेशन ऑफ गुड्स कंज्यूम करने जा रहा है या कर रहा है उसका मार्केट प्राइस कितना है, 1, ठीक है। ये उसको बिल्कुल पता नहीं होता, विच मीन्स कि यहाँ पे कोई बजट लाइन नहीं होगी। और हमने लास्ट लेक्चर्स में वी हैव ट्राई टू अंडरस्टैंड कि बजट लाइन हमें बताती है कि मार्केट प्राइस क्या है गुड्स का, और कंज्यूमर के पास जो उसकी इनकम है वो किस तरह से इस इनकम को मार्केट प्राइस के साथ मैच करके एक पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स खरीदेगा, राइट। पॉइंट एस पे हमारा कंज्यूमर ये कॉम्बिनेशन एस कॉम्बिनेशन खरीद रहा है, ओ एन, यहाँ पे ओ एन क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी ए जो हमारी है इसकी ओ एन क्वांटिटी खरीद रहा है, कंज्यूम कर रहा है, एंड ही इज एट द इंडिफरेंस को आईसी फर्स्ट पे है। बट नाउ अब कंज्यूमर को पता चलता है जो मैं कमोडिटी ए कंज्यूम कर रहा हूँ इसका मार्केट प्राइस कितना है। नाउ व्हेन ही नोज इसका मार्केट प्राइस कितना है, अब अगर ये आईसी का इंडिफरेंस करो फर्स्ट पे था, कंज्यूमर वॉज रेडी टू परचेज द एक्स्ट्रा यूनिट्स ऑफ दिस कमोडिटी, ठीक है। फॉर दैट ही वॉज रेडी टू पे द मनी फ्रॉम बी टू एम, विच मीन्स बी एम वॉज द मनी इनकम विच कंज्यूमर वॉज रेडी टू पे टू बाई द ओ एन क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी ए। इनिशियल पोजीशन पे था आईसी फर्स्ट पे, इंडिफरेंस करो फर्स्ट पे, बट नाउ टू इंक्रीज हिज कंजप्शन ऑफ कमोडिटी ए, कितनी क्वांटिटी, ओ एन क्वांटिटी, ही वॉज रेडी टू पे द मनी इनकम, कितनी, बी एम, ये ही वॉज रेडी टू पे। बट जब इसे एक्चुअल मार्केट प्राइस का पता चल जाता है इस कमोडिटी ए का कितना मार्केट प्राइस है और ये कॉम्बिनेशन जो ये खरीदना चाहता है ये इसे कितने में पड़ने वाली है, ही ड्रॉज अ लाइन विच इज बजट लाइन, जो इसे आइडिया देती है कि मार्केट प्राइस इस गुड की कितनी है। जब ये बजट लाइन ड्रॉ करता है, मार्केट प्राइस इसे पता चलता है, कंज्यूमर को इस प्राइस से पता चल जाता है कि जो मैं इनकम स्पेंड करने वाला था बी एम, ठीक है, इससे कम ही मुझे इनकम इस पर स्पेंड करना पड़ेगा, विच इज बी ए ही मुझे स्पेंड करना पड़ेगा टू कंज्यूम मोर यूनिट्स ऑफ कमोडिटी ए, ठीक है। सो ही ड्रॉज अ न्यू इंडिफरेंस कर्व, जो नई जो सेकंड पोजीशन पे वो पहुंच जाता है, दिस इज नाउ पॉइंट सी। पॉइंट सी पे क्या कर रहा है वो पहुंचा है यहाँ पे ही, बिकॉज दिस इज नाउ द इंडिफरेंस कर्व 2, विच मीन्स इसे और सेटिस्फेक्शन मिलेगी, बिकॉज ही हैज इंक्रीज्ड द कंजप्शन ऑफ कमोडिटी ए, व्हेन ही हैज इंक्रीज्ड द कंजप्शन ऑफ कमोडिटी ए ही रीचेस टू द हायर इंडिफरेंस कर्व 2। बट एक्चुअली वो कितना अमाउंट पे करना चाह रहा था, कितनी मनी इनकम स्पेंड करना चाह रहा था, ही वॉज विलिंग टू पे ओ एम मनी इनकम on the purchase of commodity A to get maximum satisfaction to reach indifference curve 2, which means कि वो इतनी इनकम जो है हमारी ओ एम और अदरवाइज आप कह सकते हैं एफ एस जो इनकम है वो स्पेंड करना चाह रहा था, बट मार्केट प्राइस जो गुड्स का है वो कम निकला, उसे कम ही मनी इनकम स्पेंड करनी पड़ी। नाउ द जो इनकम एक्चुअली वो पे कर रहा है दैट इज बी ए, डियर स्टूडेंट्स, विच मीन्स द अमाउंट विच ही सेव्स इज दिस मच अमाउंट। सी एस यहाँ पे कंज्यूमर सरप्लस है, कंज्यूमर का जो उसका सेव हो जाता है, राइट। सो इसे थ्योरेटिकली थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। देयर आर 2-3 पॉइंट्स जो हमें इस ग्राफ से समझ में आए हैं, कंक्लूजन्स हैं, राइट। हियर एक पॉइंट में स्ट्रेस करना चाहूँगा डियर स्टूडेंट्स कि अगर आपके एग्जाम में पूछा जाता है हाउ वी कैन मेजर, क्वेश्चन इज आस्क्ड हाउ वी कैन मेजर कंज्यूमर सरप्लस बाय यूजिंग इंडिफरेंस कर्व टेक्निक और इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, तो आपने ये ग्राफ जो है मेमोराइज करनी है, परफेक्टली कोशिश करनी है बनाने की, प्रैक्टिस भी करनी है। दिस ग्राफ आपने वहाँ पे बना ली तो इविडेंट योर क्वेश्चन। देन द सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होना चाहिए कि आप इस ग्राफ को समझा पाएं, डिस्क्रिप्शन इसकी एक परफेक्ट डिस्क्रिप्शन लिख पाएं, राइट। वो डिस्क्रिप्शन कैसे हम लिख पाएंगे, जब हमने समझें कि इनिशियल पोजीशन पे हमारा कंज्यूमर कहाँ होता है और कितना मनी इनकम वो स्पेंड करना चाहता है टू रीच द हायर इंडिफरेंस करो, एक्चुअली वो कितना पे कर रहा है, तो जो अमाउंट उसका बीच में जो उसका बेनिफिट रहता है, जो बेनिफिट मिलता है उसको, दिस मच बेनिफिट विच इज सी एंड एस, यही कंज्यूमर सरप्लस है। आइए थोड़ा सा थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग देखते हैं। अकॉर्डिंग टू जे आर हिक्स एंड आरजीडी एलन सर, कंज्यूमर सरप्लस का क्या मतलब है, व्हेन अ कंज्यूमर मूव्स फ्रॉम अ लोअर इंडिफरेंस कर्व टू अ हायर इंडिफरेंस कर्व, तब कंज्यूमर को कंज्यूमर सरप्लस मिलता है, एक्स्ट्रा वो बेनिफिट मिलता है, ठीक है, तब वो कुछ सेव कर पाता है। व्हेन ही स्पेंड्स लेस मनी इनकम ऑन अ कमोडिटी देन एक्सपेक्टेड, इन केस ऑफ दिस ग्राफ हमारा कंज्यूमर जो है ओ जो है बी एम वॉज द मनी इनकम विच वॉज हायर, विच वॉज मोर, विच ही वॉज एक्सपेक्टिंग टू स्पेंड ऑन द परचेज ऑफ कमोडिटी ए, बट वट ही एक्चुअली spends the amount of income which he actually spends is, dear friends, BA, which is less than the BM, which means the second important condition for consumer to get the consumer surplus or to get that extra benefit is consumer spends less money income on a good, on a commodity than expected. Third important point, position of more income than expected. Consumer has more income here, which means he has BM income, which is more income, but what he actually spends, he spends BA income than the actual income he has. There are 3 important conditions. So with this we have completed and concluded the consumer surplus. In the coming sessions we will understand the producer surplus and some practice questions from this session.